Hello everyone. Today we will discuss about the joints. So, the point at which two bones meet is known as joint. Okay children? जहाँ पे दो बोन्स आपस में जुड़ती हैं उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? जॉइंट्स. ठीक है? जहाँ पे दो बोन्स आपस में एक दूसरे से मिलती है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? जॉइंट्स. ओके? एंड if joints are not present in our body, our body become rigid. Okay, we are not able to move, we are not able to write, eat, or we are not able to bend our body in any direction. Okay, so next topic is how many types of joints is present in our body. So in your science NCERT 5 types of joints are given. Okay, so see one by one. First one is ball and socket joint, second one is pivotal joint, third hinge joint, fourth saddle joint, and the last one is fixed joint. Okay, so children, we will discuss one by one all these 5 joints. Okay, see here. First one is ball and socket joint. Okay, ball and socket joint. See. Wait. See here children. Ball and socket joint, it allow our body to move in all direction. Okay, because of the help of ball and socket joint, our body move, our bones move in all direction. Okay, but it is present in only in hip and shoulder. Okay, ball and socket joint is present in hip and shoulder. Okay, it's like this ball and socket. Okay, this type of structure is given in your NCERT. Okay, like this. So what are the 2 points? That ball and socket joint allow the movement of bones in all direction, and the second important point is it is present in hip and shoulder. Clear? Now move to next part, pivotal joint. So pivotal joint allow front and back movement. Okay, it allow front and back movement along side to side movement of the bones. Clear? तो ये किस किस तरफ अलाउ करती है मूवमेंट को? फ्रंट एंड बैक. और कहाँ ये प्रेजेंट होती है? इट इज प्रेजेंट इन आवर नेक. दैट्स वाई आवर नेक मूव front back like this. Okay, and we are able to see left right. Okay, that is called side movement. Clear? So it is written here. See, pivotal joint allow the movement front and back. आप अपनी जो गर्दन है ना, नेक को गर्दन कहते हैं ना, तो उसको आप सिर्फ फ्रंट और बैक की तरफ मूव कर सकते हो, और लेफ्ट और राइट. ओके, सो मूवमेंट अलोंग साइड टू साइड मीन्स लेफ्ट राइट. ओके, एंड इट इज प्रेजेंट इन नेक. Clear? Now see the third one, hinge joint. Okay, next third part is hinge joint. So hinge joint also allow फ्रंट एंड बैक मूवमेंट ओनली. ओके, इसमें क्या होता है? सिर्फ फ्रंट और बैक में मूवमेंट होता है, लेफ्ट राइट नहीं होता है. जैसे पिवोटल में क्या था? लेफ्ट राइट भी होता है ना, साइड भी होता है. लेकिन इसमें क्या है? सिर्फ फ्रंट और बैक में होगा. ठीक है, और ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है? इट इज प्रेजेंट इन नी, एल्बो एंड फिंगर. ठीक है, नी, एल्बो एंड फिंगर. दैट्स वाई आप अभी करके भी देख सकते हो कि जो आपकी नी है, ठीक है, नी से जो मूवमेंट करोगे आप लेग का, वो कहाँ हो सकता है? या तो फ्रंट की तरफ आप मूव कर सकते हो या बैक की तरफ. ओके, सपोज दिस इज योर लेग, सो यू विल मूव इट लाइक दिस एंड दिस, फ्रंट एंड बैक. ओके, उसके अलावा आप साइड में कोई मूवमेंट नहीं कर सकते हो. और कहाँ प्रेजेंट होती है? एल्बो में. ठीक है, जैसे मान लो ये आपका हैंड है, दिस वन. ओके, ये फिंगर. So elbow में, this is elbow part. Okay, so that's why you move your arm only in front and back direction. Clear? और कहाँ present होती है? Finger में. Clear? So now children, come to the fourth one, saddle joint. Okay, what is saddle joint? Allow left and right as well as upward and downward movement of the रिस्ट. ओके, सो रिस्ट पता है ना आपको? ये हैंड के पास जहां पे आप रिस्ट वॉच पहनते हो ना, उस पोर्शन को हम क्या कहते हैं? रिस्ट. ठीक है, तो सैडल जॉइंट किस किस तरफ अलाउ करती है मूवमेंट को? लेफ्ट राइट. ठीक है, लेफ्ट राइट, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड. ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन थम्स.
ठीक है, तो दो जगह ये प्रेजेंट होती है, एक तो हमारे रिस्ट में प्रेजेंट होती है और कहाँ प्रेजेंट होती है, थंब में, हमारे थंब में। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारा थंब क्या होता है, लेफ्ट राइट अपवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट कर पाता है। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट, फिक्स जॉइंट। ओके, व्हाट इज फिक्स जॉइंट चिल्ड्रन? डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट ऑफ बोन्स, दस आर कॉल्ड इमूवेबल जॉइंट। ठीक है, फिक्स जॉइंट नाम से ही आप समझ रहे हो कि फिक्स होगा। ठीक है, यानी कि ये जो जॉइंट है ये मूवेबल नहीं होगा, एक जगह से दूसरे, मतलब फ्रंट बैक लेफ्ट राइट दिस टाइप के मूवमेंट नहीं होंगे, इमूवेबल है। ठीक है, मूवेबल नहीं, इमूवेबल। ठीक है, जहाँ जो मूव ना कर पाए इधर उधर। और ये कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारे स्कल में। ठीक है, स्कल पार्ट में, है ना। स्कल पार्ट में क्या होता है, जो जॉइंट प्रेजेंट होती है वो कैसी होती है, इमूवेबल। ठीक है, खाली आप जो लोअर जॉ होते हैं सिर्फ उसी को मूव कर सकते हो। ठीक है, और लोअर जॉ में कौन से होते हैं, हिंग जॉइंट होती है प्रेजेंट। ठीक, I hope it is clear to all of you, and we will meet in next videos with some other topic. Okay, till then all of you take care and revise the topic. If you have any confusion in any topic, then you can ask the question in comment section. Okay, I will try to reply all your query. Thank you.